Welcome back in our YouTube channel Solution of Life. Ajay Pandey. Thank you for us for your love and care to regarding our channel for making a 1,000 subscriber. And let we start today class. In last class we are talking about the estimation of size of oleic acid and we are talking about the measurement of mass and measurement of time like atomic clock and mass spectroscopic and simple balance, and we are talking about the universal law of gravitation. So let me discuss for today's class is our topic is the accuracy and precision. So what is the accuracy and precision? So firstly, before accuracy we should know that what is the error. Okay, so firstly we want to know that what is error. So this topic is many times comes in examination like JEE and NEET. तो एरर की बात करते हैं तो एरर क्या है जनरली. Suppose we want to achieve that on a target board, we want to achieve a target. This is a target, so we want to achieve it. So suppose we shoot it, so we find this one is the target, this is shooting, this is shooting. So error is the, what is the error? What we, this is target is A and achieving is that B. तो एक्चुअल में हमारा जो टारगेट था, टारगेट क्या था हमारा, जो ये सेंटर में हमें हिट करना था, जो सेंटर था, तो सेंटर को हिट करना था, दैट इज ए, दैट इज आवर टारगेट. और हमने जो हिट किया है दैट इज अ बी. क्लियर. अब देखिए जो इनके बीच में डिफरेंस है वो क्या है आपका एरर. सो एरर इज व्हाट, एरर इज व्हाट, एरर क्या है आपका, इट इज डिफरेंस बिटवीन टारगेट वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू. Target value and achieved value. Sorry. Achieved value. We can also write here it is the difference between actual value and observed value. यानी कि जो actual है वो क्या है और जो observed है वो क्या है. सपोज आपको कोई लेंथ मेज़र करनी थी दैट इज़ 7 सेंटीमीटर, बट आपने मेज़र क्या की 6.9 सेंटीमीटर. सो द डिफरेंस इज 0.1 सेंटीमीटर एंड दैट इज़ द एरर. ओके, सो व्हाट यू वांट टू अचीव, दैट इज़ द टारगेट वैल्यू, मीन्स वी कैन राइट हेयर ऑल्सो actual value, that is the observed value, and that is achieved value. Means same है दोनों, इसको हम सेम कह रहे हैं, but we have to understand what is this. So I think you understand properly what is the error. So let me start how know that what is accuracy and precision. Okay, so what is the accuracy? यानी कि एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो कि आप कितना टारगेट को अचीव कर रहे हैं, कितना टारगेट के पास जा सकते हैं, कितना आप टारगेट को क्लोज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एक्यूरेसी. फिर जो टारगेट को अचीव करने के लिए आपने जो स्टेप्स लिए हैं दैट इज कॉल्ड प्रिसीजन. तो ऐसा समझेंगे हम लोग. सपोज कि आपको 7 सेंटीमीटर अचीव करना है, ये टारगेट है हमारा सभी का. एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है, 4 लोग हैं. अब ये क्या करते हैं, जब ये ए मेज़र करता है किसी लेंथ को जो 7 सेंटीमीटर है, उसको कहता है 6.5 सेंटीमीटर है. बी जो मेज़र करता है
वो लेंथ मेज़र करता है 6.7 सेंटीमीटर, सी जो मेज़र करता है वो 7.1 और जो डी मेज़र कर रहा है वो 6.99 मेज़र कर रहा है। अब आप बताइए कि इनमें से मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है, एक्यूरेसी किसके पास है, सबसे ज़्यादा क्लोजर कौन है। क्लोजर का मतलब समझ रहे हैं आप, हाँ, कि 7 सेंटीमीटर से क्लोजर कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जो एक्यूरेट है, जो मोस्ट एक्यूरेट पर्सन है, एंड दैट इज अ डी। वाई? बिकॉज ही इज द मच क्लोजर देन द 7 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट C is accurate, after that B is accurate, and after that A is accurate. So I think you understand how much observed value is closer to the actual value is called accuracy. Clear? So I think you understand what is the accuracy. Accuracy, let me write here right now. Wait. Accuracy is what? 7. So how much closer to the actual value? क्या how much है closer value? So observed value is how much closer to the actual value. So that is called accuracy. I think you all are understand. चलिए अब देखते हैं यहाँ पर हम लोग कि क्या कंडीशंस बनती हैं, किस तरीके की सिचुएशंस बनेंगी। तो चलिए प्रिसीजन की बात करते हैं। प्रिसीजन, देखिए प्रिसीजन को समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आपका मेजरमेंट का तरीका क्या है। सपोज जैसे कि आपको किसी को 90 रुपीज पे करना है, 90 रुपीज। यहाँ पे भी आपके पास 4 पर्सन है, A B C D। जो A है उसके पास, जो A है इसके पास 1 रुपीज के कॉइन है। जो B है इसके पास 5 रुपीज के कॉइन है। जो C है इसके पास 10 रुपीज के कॉइन, और जो D है इसके पास 1 रुपीज भी है और 10 रुपीज। तो अब जब ये मेजर करेंगे तो कैसे देंगे रुपए? ये तो 10-10 के 9 नोट गिन देगा, ले जाओ भैया। ये 5-5 के कितने नोट गिनेगा? 18 नोट गिन देगा, जाओ ले जाओ। ये क्या करेगा? ये भी 10-10 के 9 नोट गिन देगा। और यहाँ पर जो आएगा, जब ये 1-1 का देगा तो ये कितने नोट देगा? 90। कितने देगा? 90। यानी कि जो स्टेप ऑफ काउंटिंग है वो किस तरीके से किया गया है, कि कैसे हमने उस वैल्यू को मेज़र किया है, कितना एक्यूरेसी पे जाकर हमने मेज़र किया है और किस टारगेट में हमने किया है। तो प्रिसीजन का मीन्स है कि हम जो वैल्यू को मेज़र कर रहे हैं तो उसका जो स्टेप ले रहे हैं वो किस तरीके से ले रहे हैं। ठीक है, अब हम किसी क्वांटिटी के मतलब से समझते हैं कि सपोज कोई क्वांटिटी है 6.5 सेंटीमीटर। ए जो मेज़र कर रहा है वो कर रहा है 6.5, बी जो मेज़र कर रहा है 6.35, सी जो मेज़र कर रहा है ये क्या कर रहा है आपकी 6.25, और डी जो है ये 6.210। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, अब इसमें
सिर्फ हम प्रिसीजन की बात करेंगे यहाँ। तो देखिए 6.5 का जो मेज़र करने का था वो डायरेक्ट 6.5 है और डेसिमल के एक प्लेस तक है, यानी कि इसके पास मिनिमम 0.1 रुपीज़ का कॉइन होगा, इसलिए ये 6.5 तक आया। ये जो 6.25 है इसके पास डेसिमल 0.01 होगा, यानी 0.01 से मेज़र कर सकता है। तो देखिए इसका रिजोल्यूशन 0.01 सबसे ज़्यादा। अब यहाँ पर देखिए इसके पास भी 0.01, लेकिन इसके पास जब आप आएंगे तो 0.001 का मिनिमम कॉइन होगा जिससे ये मेज़र करा है। तो अगर हम बात करें इन सब में प्रिसीजन किसका ज़्यादा है, तो जिसने बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप से ले उसको काउंट किया है, दैट इज क्लियर है? क्लियर? तो ये है आपका प्रिसीजन। अब हम समझ लेते हैं कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है यहाँ पर कि इन 4 कंडीशंस में आपको बताना है कि क्या सिचुएशन है, प्रिसीजन क्या है और एक्यूरेसी क्या है। तो यहाँ पर दिख रहा है आपको प्रिसीजन कितना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 5 टाइम्स टारगेट अटैम्प्ट किया गया है ए कंडीशन में, 5 टाइम टारगेट अटेंड किया गया है, 5-6 टाइम। तो देखिए सेंटर के ही पास है, बिल्कुल सेंटर के पास ही है, सारे सेंटर के पास है, कोई भी बाहर नहीं है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन है, एक्यूरेसी क्या है, हाई है। एक्यूरेसी कैसी है, बहुत ज़्यादा है। और देखिए जो मेज़र किया गया है वैल्यू वो लगभग आसपास है कि दूर दूर है, ये बिल्कुल क्लोज है। देखिए सब क्लोज है। हमने पहले मेज़र किया टारगेट के पास, फिर दूसरी बार भी टारगेट के पास, तीसरी बार भी टारगेट के पास। तो हम इसको बोलते हैं कि एरिया, जो एरिया ऑफ मेज़रमेंट है, हमने जो रिजोल्यूशन मेज़र किया, रिजोल्यूशन कह सकते हैं इसको। तो रिजोल्यूशन ऑफ कैलकुलेशन जो है वो अगर क्लोज है तो प्रिसीजन भी क्या होगा, तो वो क्या होगा, प्रिसीजन भी हाई होगा। क्लियर है? अब इसमें देखिए एक्यूरेसी क्या है। अब देखिए दूर दूर हैं सब, और सब आपस में भी दूर हैं, टारगेट से भी दूर हैं और आपस में भी दूर हैं। तो यानी कि टारगेट से दूर हैं तो एक्यूरेसी क्या हो गई, लो हो गई, और आपस में दूर हैं तो प्रिसीजन भी क्या हो गई, यानी कि एरिया ऑफ रिजोल्यूशन, एरिया ऑफ कैलकुलेशन क्या हो गया, वो भी लो हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक्यूरेसी देखिए टारगेट के तो क्लोज हैं, बट आपस में ये एक दूसरे से क्या है, दूर हैं, यानी कि एरिया ऑफ रिजोल्यूशन क्या हो गया, दूर है, तो प्रिसीजन लो हो गया। लास्ट केस में भी देखिए एक्यूरेसी बिल्कुल कम है क्योंकि टारगेट के कहीं आसपास नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपस में सब पास हैं। एरिया ऑफ कैलकुलेशन क्या है, यानी रिजोल्यूशन कैसा है, पास है, तो अच्छा है। तो आई थिंक यहाँ से आप लोगों को क्लियर होगा कि किस केस में एक्यूरेसी ज़्यादा है और किस केस में एक्यूरेसी कम। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एरर की बात करते हैं। तो जनरली ये एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चंस आता है। तो एरर 2 टाइप के होते हैं, आपको याद रखना है। नंबर 1 सिस्टमैटिक और नंबर 2 रैंडम एरर। सिस्टमैटिक जो एरर होते हैं ये 3 टाइप के होते हैं आपके। नंबर 1 इंस्ट्रूमेंटल, नंबर 2 इम्परफेक्शन, ऐसे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक, पूरा लिखा जाता है, टेक्निक लिख लीजिए या प्रोसीजर लिख लीजिए। यहाँ पर जो थर्ड वन है पर्सनल एरर। रैंडम एरर की बात करें तो इसमें एक आता है आपका ग्रॉस एरर और यहाँ पर एक आता है आपका लीस्ट काउंट एरर। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रैंडम इंस्ट्रूमेंटल एरर की। तो इंस्ट्रूमेंटल तो बहुत आसान है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इंस्ट्रूमेंट्स में ही प्रॉब्लम है, कि जिससे आप मेज़र कर रहे हैं उसी के कैलिब्रेशन में, उसकी मेजरिंग में, या उसकी जो वैल्यू रीडिंग शो हो रही है उसमें ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम।
जैसे आपने देखा होगा वेट बैलेंस में कई बार आप देखते हैं डिजिटल वाले में ऑलरेडी पहले से 500 ग्राम या 100 ग्राम दिख रहा होता है, तो वो ऑलरेडी एरर है पहले से। जो करते हैं डायरेक्टली वो नहीं, उसकी बात हम कर रहे हैं कि कुछ उसमें पहले से ही माइनर सा आ रहा होता है। अगर आप वेट बैलेंस करें तो देखेंगे एक तरफ अपने आप इधर चला जा रहा है, या किसी रीडिंग में कोई गलत है, पता चला 1 मीटर बोल के हम लोगों को जो 1 मीटर की लकड़ी है वो ऑलरेडी 800 सेंटीमीटर की हो गई। तो इस तरीके की कंडीशंस को हम इंस्ट्रूमेंटल एरर में डालते हैं। इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक यानी कि मेज़र करना नहीं आता है, थोड़ा सा हम उसको जो सेटअप है हमारा वो गलत कर रहे हैं, हमको 0 से काउंट करना चाहिए, हम 1 से काउंट कर रहे हैं। तो हमको इस तरीके की वैल्यू, जैसे हमको वेट बैलेंस है ऑलरेडी बैलेंस नहीं है तो हमने उसको प्रॉपर सेटअप नहीं किया, तो इस तरीके के जो एरर आते हैं आपके इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंट टेक्निक। पर्सनल एरर में जो हमारा कैप्चर करने का तरीका है उसको हम पर्सनल एरर में कहते हैं कि जैसे 1.1 आया, हमने 1 बोल दिया, किसी ने 1.15 बोल दिया, किसी ने 1.2 बोल दिया। इस तरीके के जो एरर्स हैं वो पर्सनल एरर हैं। देखिए ये मैं आपको समझाने के पर्पज़ से बता रहा हूँ, इसको लिखने के लिए आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं और थ्योरी बेहाफ पे है ये। ग्रॉस एरर में हम अगर देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ग्रॉस एरर में ओवरऑल कंडीशंस देखी जाती कि किस तरीके से आपने उसका सेटअप किया, क्या टर्म एंड कंडीशन थी, क्या वहाँ पे फिज़िकल कंडीशंस थी, किस तरीके से कंडीशन की आपने जनरली तुरंत कैसे कंडीशन को चेंज कर दिया। तो इस तरीके के एरर्स में रैंडम एरर्स आता है, जैसे कि फुल फ्लक्चुएशन टाइप का, जैसे अभी 1.1 था फिर थोड़ी देर के बाद चेंज हो गया तो वहाँ पे हम रीडिंग कैप्चर नहीं कर पाए। इस तरीके के एरर, सपोज टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वहाँ पे एक्सपेंशन हो गया, तो इस तरीके से कुछ चेंजेस आ रहे हैं। कुछ टेम्परेचर अपने आप कम हो गया तो उसकी वजह से ज़्यादा वैसा टेम्परेचर, तो इस तरीके के एरर आपके ग्रॉस एरर में देखने को मिलते हैं। लीस्ट काउंट एरर जो होता है वो सपोज़ कि इंस्ट्रूमेंट की ही तरह है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंड करता है, बट एक तरीके से इसको अलग कंडीशन में रखा जाता है। इंस्ट्रूमेंट एरर का मीन्स है कि जैसे कि अगर आपके पास किसी को आपको 4 रुपीज़ 50 पैसे पे करना है, तो आप जानते हैं कि आज के टाइम में 50 पैसे नहीं चलते, तो 50 पैसा क्या है कि मिनिमम कितना है 1 रुपीज़, तो 1 रुपीज़ ही आपको पे करना पड़ेगा। या तो आप इस पर्सन को 4 रुपीज़ पे कर दीजिए या तो आप 5 रुपीज़ पे कर दीजिए। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है दोनों के लिए, जो 0.5 यानी 50 पैसे का जो डिफरेंस है दोनों के लिए, दैट इज कॉल्ड एग्जैक्टली, सो दैट इज कॉल्ड हमारा लीस्ट काउंट एरर। तो आप सभी को आपको पता चल गया होगा कि एरर्स क्या होते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इन एरर्स को कैसे रिड्यूस किया जाता है, हाउ टू रिड्यूस दिस एरर। सो reduces errors by number of observation। तो जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी आपका एरर रेड्यूस हो जाएगा। लीस्ट काउंट मैंने आपको क्लास 10th में भी बताया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रैक्टिकल व्यू से क्लास 11th और 12th में। तो लीस्ट काउंट क्या होता है, किसी भी इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू मेज़र होती है, मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू मेज़र करते हैं, मिनिमम एक्यूरेट वैल्यू जो मेज़र कर सकते हैं उसे हम लीस्ट काउंट कहते हैं। जैसे कि आपका मीटर स्केल, तो इसमें कितना होता है 1 mm होता है, ठीक है। वर्नियर कैलिपर की बात करें तो 0.1 mm होता है, और अगर हम स्क्रू गेज की बात करें 0.01 mm होता है, आपको कई बार 0.1 0.05 भी देखने को मिलेगा। सो दीज आर द सम कंडीशंस फॉर द एरर्स एंड हाउ टू रिड्यूस इट। सो थैंक यू एवरीवन। आई थिंक आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जो भी डाउट है कमेंट्स में लिखें, और हमारा टेलीग्राम चैनल भी मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा, उस पर ज्वाइन हो जाएं। उस पर नीट, जेई और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स को हम लोग इस पर डालते हैं, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।